Hello friends, this is Bharat Sharma and you are watching my YouTube channel Comprehensive Bharat Sir. Friends, this video is about English speaking course. I have been an English teacher also for more than 8 years. PGT English I have been and then I just became principal for 5 years in some senior secondary school. After that I got a government job. So as I experienced, first of all, I would like to tell you one thing. No one can teach you English. The person who is claiming to teach you in 15 days, 20 days or 30 days, 45 days, no one can teach you in 1 year even. You have to just mind this point. You have to just note this point in your mind. Then, how will you learn? You will learn with your own efforts. Teacher is to guide only. Teacher is to enlighten only. But the practice is yours, the work is yours, learning is yours. You have to practice and you have to learn. If you are ready to do practice with me, then only you can come to this field. Otherwise, there is no need to just waste your time, because it will be of no use. So take it seriously, please. This is the matter of study. This is the matter of language. You are just going to learn a different kind of language. And without practicing and without having some knowledge, some sound knowledge of some words and grammars, etc., how can you imagine that you can learn the language? So please be serious. I will try my best to teach you in English, as I know, but you have to practice more. Secondly, friends, what is the need to learn English? Why is English so important? Yes, English is important. English is so important because it is an international language. This is very significant language. Suppose you are Indian and you are in India. You speak Hindi. Hindi is your mother language. You can survive with Hindi only in India or only in Indian Hindi region even. In India also, just see the southern part of India. There people speak English very well. They don't know Hindi. Like Tamil Nadu, Kerala, Karnataka. You must speak English, you must learn English to survive in these regions also. If you want to go abroad, out of country, no one knows Hindi. How would you survive then among the English? This is why you must know, you must learn English language. Second one, the internet. The internet is fully based on English. The Google. If you go to Google search, everything is in English. YouTube, information technology, computer technology, everything is in English. Well, if you want to develop yourself all around, you must learn English fairly well, first of all. Otherwise, your personality will be depressed. Your personality will be blocked, I would like to say. So this is the importance of English. There is no doubt that you must learn English if you can learn it. If you have the time to learn English, you must spare some time and put your all efforts to learn English. This is a very simple language. Actually, English has only 26 letters. 26 letters and Hindi has 52 letters. So just half of the Hindi. Hindi is very typical language. If we know Hindi, if we learn Hindi, why not English then? We learn English very fairly well, no problem. So be confident, come with me and we will just start English speaking course.
Today I am going to tell you one principle of learning languages. The principle is listening, speaking, writing and reading. This is the principle of learning language. First of all, a kid, a newborn baby, a small kid starts listening. He or she listens carefully. Whatever he listens, he knows. And he tries to speak like that. So this is the way. This is the natural way. You have to learn. You have to learn by listening, first of all. Well listen, good speakers, good orators in English, and then try to speak like them. Secondly, write correctly. Try to write correctly. Read a literature, listen orators, speakers, and try to write correctly. If you write correctly, you must speak correctly. You must read correctly. Well, the pair is listen. If you listen good, you will speak good. If you write good, you will read good. There are 4 things: listening, then speaking, then writing, and then reading. If you speak well, you will, yes, you will. If you speak well, if you listen well, you will speak well. If you listen well, you will speak well. And if you write well, you will read well. These are 4 stages you have to follow. First of all, start listening at least 1 hour a day. Good orators, good speakers, and then try to speak like them. Then start writing half an hour at least, and then reading. When you know all the 4 phases of language practice, you will know you have learnt a lot of knowledge regarding the language. So you have to just follow the rules. You have to just follow my guidelines to learn English. I will try my best to teach you in the best way. So don't worry. Today I am going to tell you 2-3 more important things. Friends, when someone says, I did a mistake, I feel very bad. I did a mistake, I do a mistake. Actually, mistake collocates make. अब मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको बताऊंगा तो और क्लियर होगा, क्योंकि आप ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको इंग्लिश नहीं आती है. जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए तो उन्हें तो आती है, और जिन्हें नहीं आती है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जिनको नहीं आती है उनको इंग्लिश में मैं समझता हूँ ज़्यादा समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैं हिंदी में बोलना अब शुरू किया हूँ. मान लीजिए कोई कहता है कि मेरे से गलती हो गई, आई डिड अ मिस्टेक. ये गलत है. दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस. क्या होना चाहिए? आई मेड अ मिस्टेक. तो ऐसी गलतियाँ बहुत होती हैं. कभी भी मिस्टेक के साथ डू का डिड का प्रयोग मत करिए. मैंने बड़े कई बार पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है, और फील्ड में पढ़े लिखे होते हैं लेकिन इंग्लिश में इतनी अच्छी कमांड नहीं होती, लेकिन जब लोग बोलते हैं तो बड़ा भद्दा लगता है. आप ना बोलें तो सही बोलें. अभ्यास इतना हो, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो कि जब आप बोलें तो अच्छा बोलें. दूसरा, जॉब. कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग? आई एम डूइंग अ जॉब. दिस इज रॉन्ग. जॉब क्या होता है? एक्चुअली जॉब इज अ स्मॉल पीस ऑफ वर्क. जॉब एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एक काम होता है, छोटा सा काम, कहीं गए और वो किया और आ गए, दिस इज जॉब. लेकिन सर्विस अलग चीज़ है, वर्किंग अलग चीज़ है. जब भी कोई आपसे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बोलेंगे आई एम वर्किंग विद, या आई एम एम्प्लॉयड विद. तो अपनी कंपनी का या अपने ऑफिस का नाम बताएंगे. तो ये छोटी छोटी बातें हैं. इन छोटी छोटी बातों में सुधार करके आप शुरू कर सकते हैं. अच्छा, इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. मुझे कुछ फ्रेजेस बड़ी पसंद हैं. जैसे एक फ्रेज़ है, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट. जैसे मुझे मैथ सॉल्व करने में बड़ी परेशानी होती है. कैसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में?
आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम। मुझे रात को अकेले जाने में बड़ी परेशानी होती है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गो अलोन एट नाइट। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट बहुत अच्छी फ्रेज़ है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि बिना फ्रेज़ को जाने आप उनको अनुवाद नहीं कर सकते। जैसे वो रात भर जागता रहा। अब जिनको पता है कि ये कैप्ट के साथ बन जाते हैं जीरंड में आईएनजी फॉर्म के साथ, वो बना देंगे। जिनको नहीं पता इसका पैटर्न क्या है वो इसको अनुवाद नहीं कर सकते। तो वो रात भर जागता रहा, ही कैप्ट अवेकनिंग होल नाइट थ्रू आउट द नाइट। तो कैप्ट के साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब में लगा के ऐसे वाक्य बन जाते हैं। वो रोता रहा, ही कैप्ट वीपिंग। इस तरह से बारिश होती रही है, इस तरह के वाक्य होते हैं। तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है, दाल में काला है। दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है CID, कुछ तो गड़बड़ है। बहुत पॉपुलर फ्रेज़ है और बहुत यूज़ भी किया जाता है बीच बीच में। समथिंग इज़ फिशी। एक ही बात है, दाल में काला है या कुछ तो गड़बड़ है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? समथिंग इज़ फिशी, कुछ तो गड़बड़ है। एक होता है मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग टायर्ड बोल देते हैं, तो ओल्ड इंग्लिश हो गया, बहुत कॉमन हो गया। अब थोड़ा सा अच्छा लगता है एडवांस में बोलने में, आई एम फीलिंग फीबल। आई एम फीलिंग फीबल, मैं थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग एक पैटर्न है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, आई एम फीलिंग। इस तरह के जो फ्रेज़ होते हैं उनसे बहुत सारे अनुवाद करने में हमको मदद मिलती है। अब देखिए कुछ जैसे पेट दर्द के लिए स्टमक एक बोलते हैं, सिर दर्द के लिए हेड एक बोलते हैं। ऐसे सारे पार्ट्स के लिए एक का यूज़ हम नहीं कर सकते, ये बात भी आपको जान लेनी चाहिए। जैसे हम कहें कि मेरे हाथ में दर्द है, तो क्या आप हेड एक बोलेंगे, हैंड एक बोलेंगे? नहीं, हैंड एक आपने कहीं नहीं सुना होगा ना। तो क्या बोलेंगे? हर्ट्स के साथ उनका यूज़ करते हैं। माई हैंड हर्ट्स, मेरे शोल्डर में है दर्द, माई शोल्डर हर्ट्स। तो कुछ में एक का यूज़ होता है, बाकी कुछ अंग में हर्ट्स का प्रयोग होता है। तो मुझे लग रहा है कि इट इज़ ऑल क्लियर। अच्छा, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, ये थोड़ा सा सहानुभूति का वाक्य है। मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, मैं आपको जान सकता हूँ। हाँ, आप किसी के साथ गए, कोई परेशानी में है और कोई कह रहा है कि भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो आप कहेंगे कि नहीं भाई मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। तो आप बोलेंगे आई एम्पैथाइज विद यू। आई एम्पैथाइज विद यू, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। दोस्तों, ये आप नोट करते रहें, थोड़ा थोड़ा आप नोट करते रहेंगे तो देखिए एक साथ से सागर नहीं बनता, बूंद बूंद से घड़ा बनता है, फिर बड़ी चीज़ें बनती हैं। तो कभी भी जल्दी ना करें, धैर्य रखें और धीमे धीमे आप मेरे साथ बढ़ें, तो कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि आपको बहुत कुछ आ गया है। और प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं खाऊंगा तो मेरे पेट में जाएगा, आपके में नहीं जाएगा। आप खाएंगे तो आपके में जाएगा। इसी तरह से विद्या है, आप मेहनत करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आएगी, नहीं तो आपको नहीं आएगी। चाणक्य ने एक श्लोक कहा है चाणक्य नीति में, अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम, और दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, बिना अभ्यास के शास्त्र विष का काम करते हैं। तो शास्त्र का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जैसे शस्त्र है ना, शस्त्र का भी अभ्यास आपने देखा होगा। जो लोग पुलिस फोर्स में हैं, पुलिस फोर्स वाले लोगों का ट्रेनिंग होता रहता है, उनकी फायरिंग की ट्रेनिंग होती है। हमारे यहाँ मुरादाबाद में है इसका एकेडमी, हमारा नियरेस्ट जो पड़ता है बुलंदशहर के पास। तो हम अपने साथियों से, अपने पुलिस में बहुत सारे हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, तो वो लोग बताते हैं कि वो लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं रेगुलर इंटरवल पे। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये क्या है? ये इसी का तो सिद्धांत है, उनका अभ्यास कराया जाता है। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो वो भूल जाएंगे। या जो नए नए वेपन्स आ रहे हैं वो उनकी प्रैक्टिस नहीं उनको कराई जाएगी तो वो कैसे कर पाएंगे? तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। और हमारी स्टडी में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे प्रोफेसर्स थे जो हमें पढ़ाया करते थे ग्रेजुएशन में, तो मैंने देखा वो धड़ल्ले से बोलते थे कि हम पढ़ते हैं, हम रात में पढ़ते हैं, हम 11 बजे तक नहीं पढ़ते तो हमें नींद नहीं आती, आदत हो गई है पढ़ने की।
वो लोग पढ़ते थे और नोट्स बनाते थे, देखते नहीं थे उनको, उनको कमांड इतनी ज़बरदस्त थी कि वो नोट्स कभी देखते नहीं थे, मैंने नहीं देखा कभी देखते थे, लेकिन आदत थी वो फाइल में रख के लाते थे और खुद बोलते थे कि हम पढ़ते हैं, कल बच्चों को क्या पढ़ाना है हम पढ़ते हैं। मिश्रा जी थे, एक मलिक साहब थे, कई हमारे प्रोफेसर बड़े हमें आज याद आते हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है, अभ्यास आप करें। तुम्हारा मन बहुत चंचल है, फिकल माइंड, यू हैव अ फिकल माइंड। फिकल माइंड का मतलब चंचल मन, इसका मन चंचल है, इसकी चंचल चित्तवृत्ति है। ही हैज़ अ फिकल माइंड। फिकल माइंड, जिनका बहुत इधर उधर भागता है, मन स्थिर नहीं रहता है, उसको बोलते हैं फिकल माइंड। तुम कितने कंजूस हो, यार तुम तो बड़े कंजूस हो, या तुम तो कितने कंजूस हो। यू आर सच अ चीप स्केट। चीप स्केट, यू आर सच अ चीप स्केट, तुम बहुत कंजूस हो। मुझे श्राप मत दो। डोंट के साथ ऐसे, मुझे ये मत करो वो मत करो, ऐसे डोंट के साथ बनते हैं। मुझे गाली मत दो, डोंट अब्यूज मी। मुझे श्राप मत दो, डोंट कर्स मी। ये मत करो वो मत करो, डोंट के साथ ऐसे अनुवाद किया जाता है। तो एक और मुझे ध्यान आ गया, कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। दिस असाइनमेंट इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है। फ्लैटरी, चापलूसी मेरे बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा वाक्य है। फ्लैटरी इज नॉट ए कप ऑफ टी, इज नॉट माई कप ऑफ टी। फ्लैटरी इज नॉट माई कप ऑफ टी, माई कप ऑफ टी इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे बस की बात नहीं है। इज नॉट माई कप ऑफ टी, इज नॉट माई कप ऑफ टी, इज नॉट माई कप ऑफ टी। जब आप इनके फ्रेजेस का अभ्यास करें तो आप इस तरह से करें, है ना। जैसे हम शुरू में बच्चों को जब कराते हैं तो हम कराते हैं व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। तो व्हाट्स योर नेम, तो उसको पता चल गया कि मेरा नाम पूछा जा रहा है, तो माई नेम इज़, माई नेम इज़, माई नेम इज़, माई नेम इज़, इसको अभ्यास कराते हैं। तो जब वो अपना नाम बताए तो उसको सेंटेंस ना बनाना पड़े, माई नेम इज़ उसके मुंह से अपने आप से निकले और केवल उसको अपना नाम बोलना पड़े। तो इतना अभ्यास हमारे यहाँ कराया जाता है कि पहले मैं एकेडमी में था, कुछ समय में ब्रिटिश में भी रहा, कुछ समय में अमेरिकन में भी रहा। ब्रिटिश अमेरिकन दोनों इंग्लिश को मैंने देखा है। तो मैं जैसे जैसे आगे ये कोर्स बढ़ेगा मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि वो जो सेंटेंस पैटर्न है, जब उस तरह की बात आए तो वो चीज़ अपने आप अंदर से निकले। जब ये निकलने लगेगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।